This conference will now be recorded.
Hello. 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 Yeah. Good evening, everybody. Where, yeah, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Where are the rest of the candidates? Apart from 80 to 85 candidates, only 20. Please kindly text once in the group. Amritaksha, just pay a text in the group. Just say that we are going to start within 2 minutes. That's it. Okay. So most of the candidates have arrived. So shall we start? I think we shall start. It's already 10 minutes. Okay. So I said that today I'm going to discuss first about what is serial communication and what is parallel communication. After that only we will start our class. Okay, right? So what is serial communication? Who can say what is serial communication? What is serial communication? Can anybody say what is serial communication? Okay, serial communication is sending data one bit at a time sequentially. Okay, 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 fine. Thank you. Very nice. You're absolutely right, Amritaksha. Now I would explain what is serial communication and what is parallel communication. Okay, see, the most important thing is that you have to know before coming into serial communication and parallel communication that that in the day-to-day life when we share and receive informations, these informations are generally in the form of what? These are in the form of in real life written format or voice or audio, video, these types or written formats, right? It can be signs also, signs and symbols. So these are the way of transferring information between human to human.
or human to animals, right, in our day-to-day life. But these devices won't be able to understand voice and audios as well as videos, signs, symbols. They won't be able to understand. Okay, so these devices actually share their information or they communicate among each other with the help of electrical signals. With the help of electrical signals. I hope you know all these things. Okay, with the help of electrical signals. Various modes are used. Various modes are used. Okay, various modes are used in order to communicate. In order to communicate. Various modes are used in order to communicate between devices, or with the help of which communication between devices are possible. From one device to other device to other device. This is how the communication is possible. Okay, the next. I would say that there are two modes of communication, okay, between the devices. There are two modes of communication or suitable communication, suitable modes for communication between digital devices. Means the digital devices can communicate among themselves with two processes. The first one is the serial and the second one is the parallel. चलो हो गया ये काम हमारा. Serial communication and parallel communication. तो serial communication होता है या parallel communication होता है, both can be used to transfer information. Both can be used to transfer information. Okay, but they are different from each other. Remember, they are different from each other. Okay, they are different from each other, right? Now communication. What is communication? Communication is actually what? It is the process of exchange of data. It is the process of exchange of data, or you can say it is the process of exchange of information between two participants, or between two persons, or between two devices, two or more, you can say. So this is actually what? This is called communication. This is called communication. Basically, it is between two participants. Okay, so we all are from the computer science background. Some are from the electrical background, some are from the electronics background, some are from the information technology background. So in the field of electrical engineering, electronics engineering, information technology, all these fields, here communication means exchange of any kind of information in the form of electrical signal. In the field of engineering, what does communication means? Communication means exchange of any kind of information in the form of electrical signals between two devices. Getting the point? Is it clear? What does communication means? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताइएगा. बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है. सो यहाँ पर जो हमारा जो इंफॉर्मेशन जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, द इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट कुड बी एनीथिंग. ये कुछ भी हो सकता है. आप ऑडियो भेज सकते हो, आप वीडियो भेज सकते हो, कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ डेटा भेज सकते हो, कुछ एनकोडेड डेटा भेज सकते हो, कुछ क्रिप्टोग्राफिक डेटा भेज सकते हो, कुछ भी आप भेज सकते हैं, एनीथिंग. ठीक है. तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि भाई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कम्युनिकेशन होता कैसे? कैसे कम्युनिकेशन होता है? ये दो तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है. आपको भी पता है कैसे होगा, मैजिक थोड़ी है. या तो वायर टेक्नोलॉजी से होगा या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी से होता है. या तो वायर टेक्नोलॉजी से होता है या फिर वायरलेस होता है, या फिर तार के जरिए होता है, वायर के जरिए होता है, या फिर वायरलेस बिना तार के होता है ना? राइट. सो अगर ये वायर के जरिए होता है तो इसको हम लोग वायर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन. और अगर ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है तो जनरली क्या होता है? रेडियो सिग्नल्स होते हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स होता है. क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हो रहा है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. नाउ अब ये कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये कम्युनिकेशन जो होता है ये क्लासिफाई किया जाता है आपका तीन पार्ट में. एक होता है सिंप्लेक्स, ठीक है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स,
और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। ये आता है, ये पता है आप लोगों को? डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? व्हाट इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स? यस। तो मैं इसके बीच में अब नहीं जा रहा हूं, मैं इसके अंदर अब नहीं जा रहा हूं, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस थिंग्स नाउ। नाउ नाउ नेक्स्ट, ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है। मीन्स मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ठीक है? दैट इज यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन वर्ल्ड। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, बट कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन फर्दर इसको और क्लासिफाई किया जाता है टू पार्ट्स में। कम्युनिकेशन को मेनली क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट में, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। ये पता आप लोग को व्हाट इज एनालॉग एंड व्हाट इज डिजिटल? दिस यू नो व्हाट इज एनालॉग कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन? डू एवरीबॉडी नो व्हाट इज एनालॉग कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन? अरे बाप रे, ये भी पता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन भी पता आप लोग को, डिजिटल कम्युनिकेशन भी पता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट कर जाते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में। तो व्हाट इज सीरियल कम्युनिकेशन? अभी हम लोग जानेंगे सीरियल कम्युनिकेशन क्या है। सीरियल कम्युनिकेशन एक्चुअली देखिएगा क्या होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग भी किया था सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। तो ये दो तरीका है, दिस इज द टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस टू डिवाइसेस। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, आपका लैपटॉप हो गया और आपका प्रिंटर हो गया। तो आप लैपटॉप से क्या कर रहे हो, लैपटॉप से प्रिंटर को कुछ प्रिंट करने के लिए दे रहे हो, ठीक है? तो क्या हो रहा है, आपका लैपटॉप जो है प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा? दो तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो वो सीरियली कम्युनिकेट कर रहा है या फिर वो पैरेलली कम्युनिकेट कर रहा है। दोनों में से कोई एक तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको छोड़कर कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या है। सीरियल कम्युनिकेशन यहाँ पर अगर हम लोग जानते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग सोचेंगे अभी। देखिए, सीरियल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ये डिजिटल कम्युनिकेशन को बिलोंग करता है। ओके, ये टाइप ऑफ digital communication, it is a type of digital communication where data is transmitted, bit by bit, where data is transmitted bit by bit, data is transmitted bit by bit। तो bit by bit data transmit होता है, ठीक है? क्यों बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर होता है? यहाँ पर एक बार में सारे बिट्स क्यों नहीं ट्रांसफर हो जाते? एक एक बिट करके क्यों ट्रांसफर होता है डेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चैनल होता है, एक ही चैनल होता है, थ्रू थ्रू कॉमन चैनल, थ्रू अ कॉमन चैनल। यहाँ पर सिर्फ एक चैनल होता है। एक चैनल का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? एक वायर होता है, ठीक है? एक तार होता है, एक तार, एक वायर होता है। ओके, एक वायर होता है। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हो रहा है? यहाँ पर एक वायर होता है, ओनली वन वायर। दैट्स व्हाई बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है डेटा यहाँ पे। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? सिंस देयर इज ओनली वन चैनल, देयर इज ओनली वन वायर, सीरियल कम्युनिकेशन जो होता है ये कैनॉट सेंड, सीरियल कम्युनिकेशन कैनॉट सेंड होल बाइट एट अ टाइम। होल बाइट का मतलब 8 बिट। 8 बिट अगर मिल जाए तो एक बाइट बना लेता है, मतलब एक कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है? तो ये कभी भी एक साथ 8 बिट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये हमेशा कितने को ट्रांसफर करता है? बिट बाई बिट, बिट बाई बिट, ठीक है? मतलब 8 बिट कभी भी एक साथ ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। 8 बिट नेवर, इट कैन नेवर बी ट्रांसमिटेड एट वन टाइम। वन, ओके, 1 बिट एट वन टाइम, मतलब एक बाइट अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो 8 बिट्स, 8 बार डेटा ट्रांसफर होगा, 8 बिट्स ट्रांसफर होंगे वन बाई वन। इसीलिए कहते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या होगा, फास्टर है या स्लोअर है? क्या लगता है आपको, सीरियल कम्युनिकेशन दिस इज दिस अ फास्टर मेथड और इट्स अ स्लोअर मेथड? व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ स्लोअर मेथड, इट्स अ स्लोअर मेथड। सीरियल कम्युनिकेशन स्लो मेथड है, इट्स अ स्लो, इट इज रिलेटिवली स्लोअर मेथड। सो सीरियल कम्युनिकेशन जो है, सीरियल कम्युनिकेशन जो है, सिंस ये स्लोअर मेथड है, इसीलिए ये
लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन वगैरह में होता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये सुटेबल होता है। इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि एक सिंगल चैनल यूज कर रहा है ना, सिंगल वायर यूज कर रहा है, तो इसमें क्या है, इसका नेटवर्किंग का कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत कम होता है, और आपका क्या करेगा, इसका एकोमोडेशन स्पेस जो होगा वो भी वो लेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है, और इसका जो कनेक्टिविटी होगा वो भी लेस कॉम्प्लेक्स होगा। इसीलिए सीरियल कम्युनिकेशन को हमेशा लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो कनेक्टिविटी हो या फिर हमारा जो व्हाट टू से इम्प्लीमेंटेशन हो वो बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। तो सीरियल कम्युनिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन सिंस इट इज यूजिंग सिंगल चैनल, तो बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, ओके। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हुआ व्हाट इज सीरियल कम्युनिकेशन? ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, नेक्स्ट टाइप जो हमारा होगा कम्युनिकेशन, वो पैरेलल कम्युनिकेशन होगा। बट एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और भी आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये सीरियल कम्युनिकेशन जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। सीरियल कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप। सीरियल कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप, एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, दूसरा होगा हमारा सिंक्रोनस। एक होता है एसिंक्रोनस, दूसरा होता है सिंक्रोनस। ओके, synchronous and asynchronous. What is synchronous and what is asynchronous? What is synchronous and what is asynchronous? These two are the part of what? These two are the part of serial communication. What is asynchronous and what is synchronous? देखिए, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एक्चुअली क्या होता है? यस यस यस, यू आर राइट राइट, देवज्योति यू आर 100% राइट। देखिए, डिजिटल कम्युनिकेशन में हमारा क्या आ जाता है, पैरेलल और सीरियल कम्युनिकेशन आ जाता है। मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। बट ये सीरियल कम्युनिकेशन जो है ये एक्चुअली क्या होता है, ये फर्दर दो पार्ट में और भाग किया जाता है, दो पार्ट में और तोड़ा जाता है इसको। पहला पार्ट होता है सिंक्रोनस, दूसरा हो जाता है एसिंक्रोनस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होता है इन दिस टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन में सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होता है, द सेंडर एंड द रिसीवर आर सिंक्रोनाइज्ड। कैसे सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है? यूजिंग क्लॉक, यूजिंग क्लॉक। सिंक्रोनस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन सिंक्रोनस? इन सिंक्रोनस द सेंडर एंड द रिसीवर आर सिंक्रोनाइज्ड using external clock or using external clock. What does this mean? This means that when the data is transmitted, when the data is being transmitted, so since the data being transmitted has no gaps between them, since the data being transmitted has no gaps between them, क्यों? क्योंकि एक बिट के बाद एक बिट, एक बिट के बाद एक बिट ट्रांसमिट होते जा रहा है, तो इसमें तो कोई गैप नहीं है। सो जो डेटा हमारा जो ट्रांसमिट हो रहा है उसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो जो हमारा रिसीवर है, रिसीवर जो है, द रिसीवर आइडेंटिफाइज द स्टार्टिंग ऑफ अ कैरेक्टर, ओके, यूजिंग अ क्लॉक पल्स, यूजिंग अ क्लॉक पल्स। मतलब जो हमारा रिसीवर है उसको पता होना चाहिए कि स्टार्ट बिट कौन सा है, स्टॉप बिट कौन सा है, विच इज द स्टार्ट बिट एंड विच इज द स्टॉप बिट। जैसे सिंक्रोनस में हम बताएंगे, जैसे 1 0 0 0 1 0 1 1, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 हो गया। चलो, तो यहाँ पर ये हो जाता है स्टार्ट बिट और ये हो जाएगा आपका स्टॉप बिट। तो ये हो जाता है स्टार्ट बिट, सबसे पहला वन हो जाता है स्टार्ट बिट, और सबसे एंड वाला वन जो हो जाता है वो होता है स्टॉप बिट। इसका मतलब क्या है? एक बाइट डेटा ट्रांसफर हो गया, मतलब एक कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया। ये कैसे पता चलता है उसको? ये पता चलता है थ्रू क्लॉक, थ्रू क्लॉक। डेटा लैग नहीं होता है ना, तो थ्रू क्लॉक, क्लॉक पल्स के वजह से पता चल जाता है कि ये एक बाइट डेटा ट्रांसफर हो गया। चलो, दिस इज हाउ इट आइडेंटिफाइज द डेटा, दिस इज हाउ द रिसीवर आइडेंटिफाइज द डेटा।
Okay, so this is actually synchronous. This is actually synchronous, right? ये एक्चुअली मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन पे काम करता है, जहाँ पे ट्रांसमीटर जो हमारा होता है वो हमारा मास्टर होता है, ठीक है, और रिसीवर जो हमारा होता है वो हमारा स्लेव होता है। रिसीवर इज अवर स्लेव। मतलब ट्रांसमीटर जो भी ट्रांसमिट करेगा रिसीवर को रिसीव करना ही होगा। ट्रांसमीटर नेवर केयर्स, ट्रांसमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ट्रांसमिट करता जाएगा करता जाएगा, ठीक है। जैसे एक बाइट डेटा हो जाएगा, रिसीवर हैज टू रिसीव, ठीक है। सो ये होता है हमारा सिंक्रोनस, ये हमारा होता है सिंक्रोनस। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा एसिंक्रोनस। नेक्स्ट होता है हमारा एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस थोड़ा सा मैंने शायद गलती कर दिया है। स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट जो होता है, ठीक है, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट जो होता है वो हमारा एसिंक्रोनस में होता है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सिंक्रोनस में स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट नहीं होता है, ठीक है। इसका पैरिटी बिट कहते हैं, पैरिटी बिट, पैरिटी बिट्स होता है। देखिए सॉरी, ये एसिंक्रोनस का है, पैरिटी बिट्स कहते हैं। एक स्टार्ट बिट हो गया, एक स्टॉप बिट हो गया, इसको पैरिटी बिट कहते हैं। तो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट, ये पैरिटी बिट जो होता है, ठीक है, ये एक्चुअली एक डिनोट करता है स्टार्ट, एंड एक्चुअली एक डिनोट करता है एंड ऑफ द कैरेक्टर, और या फिर बाइट्स। They are actually added to identify the beginning and end of the data. Okay, that's why there is no need of any external clock. There does not need any external synchronization clock. There doesn't need any external synchronization clock in asynchronous. क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट तो है, इसी से तो पता चल जा रहा है ना कि एक बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो गया। सो एसिंक्रोनस में कोई भी क्लॉक का जरूरत नहीं पड़ता है। एसिंक्रोनस में कोई भी क्लॉक का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैरिटी बिट्स होते हैं। एक बाइट डेटा ट्रांसफर मींस द रिसीवर ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स दैट वन बाइट ऑफ डेटा हैज बीन transferred. But in synchronous, since there is a synchronization clock, so synchronous clock pulse provides a constant time interval. This synchronous clock pulse provides a time interval between the data. Okay, so the data transmission totally depends upon the frequency of the clock pulse. It totally depends upon the frequency of the clock pulse. ओके, आई मेड अ लिटिल मिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इधर, ये मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया था चीज को, ठीक है। सो होप सो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि एक्चुअली सिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस क्या है। इसके ऊपर आपका जो नोट्स है वो मैं डेफिनेटली दे दूंगा, बट यहाँ पर लेमन्स टर्म पे तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया कि एक्चुअली व्हाट इज सिंक्रोनस एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस। ये सर नो, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, जो भी है हम लोग समझ गए। और फर्दर फर्दर हो गया हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन पे हम लोग चलते हैं। ये लास्ट है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स में और लूंगा। पैरेलल कम्युनिकेशन, व्हाट इज पैरेलल कम्युनिकेशन? पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें देखिएगा मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों? इन पैरेलल कम्युनिकेशन it is also a form of digital communication where multiple bits of data are transmitted over multiple channels. Multiple bits of data is actually transmitted over multiple channel. और एक बार में कितने चैनल होते हैं? मल्टीपल चैनल होते हैं, 8, ठीक है, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई होते रहता है। सो एक पैरेलल कम्युनिकेशन नीड्स सेपरेट 8 चैनल्स टू ट्रांसफर 8 बिट्स ऑफ डेटा, क्योंकि एक वायर तो एट अ टाइम 1 बिट डेटा ही ट्रांसफर कर सकता है। तो पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है? एट अ टाइम 8 चैनल चाहिए उसको, 8 वायर्स चाहिए, तब जाके वो 1 बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। जब वो 8 बिट्स ऑफ डेटा, मतलब एक बाइट डेटा जब हो जाएगा, तो 1 बाइट ऑफ डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल। ये सिंगल एक क्लॉक साइकिल बनाकर, ठीक है, इसको डायरेक्टली भेज दिया जाता है।
ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली क्या है, ये आपका शॉर्टर डिस्टेंस में जनरली यूज होता है, बट एक बात याद रखिएगा, एक्चुअली ये क्या होता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स मल्टीपल वायर्स। तो मल्टीपल वायर्स एडेड टू एक्स्ट्रा कॉस्ट, एंड वन मोर थिंग, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस टू एकोमोडेट दोज वायर। बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए उस वायर्स को एक्सपोज मतलब एकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी एक्सपेंस ज्यादा जाता है, और इसके लिए क्या करना होगा, वेल नोन वेल ऑर्गेनाइज्ड मींस एक वर्किंग स्पेस होना चाहिए, और मींस प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ये तो मतलब ज्यादा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स कनेक्टर्स इंक्रीजेस, माने इसका कनेक्टिविटी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसके लिए जो डिजाइन प्रिपेयर करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली इसका डिजाइन प्रिपेयर करना पड़ता है, डिजाइन प्रिपेयर करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है, तो ये ओवरऑल ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड है। ओके, और एक बात याद रखिएगा, इसमें सिंगल चैनल नहीं है, मल्टीपल चैनल्स है, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से मल्टीपल मल्टीपल चैनल्स है। तो वो तो कहते हैं ना, मल्टीपल चैनल्स अगर होते हैं तो एक स्कीविंग का मतलब खतरा हो जाता है। स्कीविंग समझते हैं आप लोग? क्रॉस टॉक, क्रॉस टॉक हो जाता है, देखिएगा क्रॉस टॉक। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है आपका पैरेलल कम्युनिकेशन में। ओके, सो दे आर बेस्ट यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. Oh, okay, between any digital devices. So that's the difference between serial and parallel communication. Do anybody have any question, or is it clear to everybody? Do anybody has any question, or it is clear to everyone? Okay, so let's move ahead. It is clear to everybody. I hope so. It is clear to everybody. Only Amritaksha is speaking. बाकी सब गए किधर? Where are the rest of the people? Wait just a second. কৌস্তভ, কৌস্তভ ক্লিয়ার হয়েছে? কৌস্তভ রে, কৌস্তভ, whatever I spoke right now, okay, or whatever I communicated, is it clear to you? Kostov? Okay, I'm not getting any reply from Kostov side. Okay, no problem. Okay, Ritobroto Mukherjee? Ritobroto Mukherjee? Yes, almost, sir. Clear হয়েছে? Clear হয়েছে তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। Okay, fine, fine. So, no issue. Okay, let's move ahead. Okay, fine. Now, अभी हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, wait, let me think a bit. थोड़ा सोचने दीजिए मुझे। Okay, okay, no problem. No issue, no issue, no problem. ঠিক আছে, কৌস্তবকে বলবে পরে রেকর্ডিংটা নিয়ে নেবে। अच्छा, होम ऑटोमेशन आप लोगों को पता है होम ऑटोमेशन क्या है? किसको पता है होम ऑटोमेशन क्या है? स्मार्ट होम, स्मार्ट होम, यस यस, एग्जैक्टली यही होम ऑटोमेशन होता है। ठीक है, चलिए ना, अगर पता है तो अच्छी बात है, और कोई है किसी को नहीं पता है होम ऑटोमेशन क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम अमृताक्ष और देवज्योति, किसी को कुछ नहीं पता है? देवज्योति, यू आर राइट।
Shayon Sinha, we know basic of that. Yes. Okay. You know the basic. Okay, fine, no problem. Not in detail. Okay, no problem, no issue, no issue. I will tell you everything in detail. देखिए डिटेल में एक्चुअली क्या बोलना है, मैं आपको प्रोसेस दिखा सकता हूँ, क्योंकि तो ये तो आईओटी का क्लास है ना, ये तो आईओटी का क्लास है, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल्स तो आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ओवरऑल जो होम ऑटोमेशन क्या है, ठीक है, इसका एडवांटेज कहाँ है, आज कौन सी कंपनी इसको, नेस्ट लैब्स, ठीक है, एक कंपनी है, कौन सा कंपनी इसको यूज कर रहा है, ठीक है, ये सब हम लोग थोड़ा जान लेंगे तो बेहतर है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आप ही कंट्रोल करोगे। यहाँ पर कौन है? अमृताक्ष, तुम्हारा बाड़ी कोथा है? गुड़िया, ठीक है। सायन का कहाँ बाड़ी है? सायन बाड़ी कहाँ है आपका? राजारहाट, बहुत अच्छी बात है, खूब भालो। उर्जित प्रामाणिक, होम ऑटोमेशन सिस्टम विल कंट्रोल लाइटिंग, क्लाइमेट, ठीक है, एंटरटेनमेंट सिस्टम लाइक स्मार्ट होम। वाह, खूब भालो कथा আছে। यस उर्जित, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है, ये पढ़ के एग्जाम देने के लिए बहुत अच्छा है, बट हम लोग ये डेफिनेशन से थोड़ा खुद का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जादूगरी करेंगे हम लोग, ठीक है, मैजिक करने का कोशिश करेंगे, इधर देखते हैं होता है या नहीं। सो ठीक है, तो अमृताक्ष या फिर सायन या फिर कोई भी, অরিজিৎ বাড়ি কোথায়? बहरमपुर, ठीक है। तो तीनों में से यहाँ पर जो भी है, सायन है, उर्जित है, आपका अमृताक्ष है, सो तीनों पर्सन में से कोई भी किसी एक को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ऐप मैं अभी तैयार करवा देता हूं आप लोगों को, आई एम जस्ट मेकिंग यू द ऐप। ऐप आप रेडी कर लो, आप वहां से कंट्रोल करोगे। एसी करंट में यूज किया हुआ, एसी करंट में यूज किया, एसी करंट में के साथ मैं ये करूंगा, एक बल्ब कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर ऑटोमेशन कर दूंगा, आप वहां से कनेक्ट करोगे फ्रॉम योर होम ओवर द इंटरनेट, चलेगा? कैन दिस बी डन? मीन्स कैन वी डू दिस एक्सपेरिमेंट, यस और नो? पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो ये एक हाँ, स्मार्ट होम का एक एग्जांपल हो जाएगा। दिस विल बी, दिस इज गोइंग टू बी द मीन्स व्हाट टू से एग्जांपल ऑफ स्मार्ट होम, ठीक है। इससे ज्यादा भाई अभी फिलहाल हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब और बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बट डिवाइसेस जो है ना, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, एक डिवाइस अगर खराब भी हो जा रहा है तो मतलब डिवाइस इस अभी देने दे भी तो नहीं जा रहा है ना कोई डिवाइस, ठीक है। तो मेरे मेरे पास जो भी डिवाइसेस है, मैं उससे डेफिनेटली आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करवा दूंगा कि ये, हाँ, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट मैं आपको नहीं करवाऊंगा, डोंट वरी, कभी भी मैं आपको रिपीट नहीं करवाऊंगा। मतलब आप लोगों के पास जो एक्सपेरिमेंट है वो यूनिक एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, यूनिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है। डोंट वरी विद दैट कि सर ने एक रिपोर्ट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट कराया जो रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड नहीं होगा, इतना बिलीव रखो आप मेरे ऊपर। वी विल डू, ऑलवेज वी विल डू समथिंग इनोवेटिव, डोंट वरी विद दैट, ऑल दोस थिंग्स। सो ठीक है, ब्लिंक ऐप का नाम सुना आप लोगों ने? ब्लिंक ऐप, ब्लिंक ऐप कभी काम किया है? हैव यू वर्कड विद ब्लिंक ऐप? एनीबॉडी? ओके, नो नो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबके पास एंड्रॉयड फोन है ना? एंड्रॉयड फोन है सबके पास? हाँ, ठीक है। अभी है, अभी 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 पास में तो है, पास में तो है, पास में है ना अभी, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, रुको ब्राउजर ओपन होने दो। ब्लिंक ऐप,
ये देखो ब्लिंक एक IoT का ऐप है। अच्छा ठीक है, ब्लिंक एक IoT का ऐप है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको एक ब्लिंक एक IoT का ऐप है, ठीक है। तो एक बात बताता हूँ, IoT में करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये लोगो देख पा रहे हो, ये लोगो दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में टॉप पे बी लिखा हुआ है, कैपिटल बी। ये लोगो है, ठीक है, ये लोगो है, ये लोगो है। ये लोगो का मतलब ऐसा ही लोगो का ऐप, इसी लोगो का देखो, ब्लिंक टाइप करोगे तो आपको भी पता है प्ले स्टोर पे बहुत कुछ आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर कौन सा इंस्टॉल करें, पता ही नहीं है। तो इस लोगो का, ये इस तरीके का लोगो का, ये लोगो का ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, ये लोगो का, ठीक है। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, गो टू प्ले स्टोर और राइट डाउन ब्लिंक ऐप, ब्लिंक ऐप, ब्लिंक ऐप लिखिए, BLYNK, ब्लिंक प्ले स्टोर, ठीक है। ये देखो playstore.google.com, क्या बात है, देखिए। सो इसको हम लोग डाउनलोड कर लीजिए, ब्लिंक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये ब्लिंक ऐप देखो, इसको डाउनलोड करो और इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आप इंस्टॉल करो, ঠিক আছে। দেবজ্যোতি হয়ে গেল? এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না? আগের থেকে করে রেখেছো? अच्छा डाउनलोड এখন হয়ে গেল, इंस्टॉलिंग, ओके ओके। ये ब्लिंक ऐप से इसको डाउनलोड करो। প্রি ইনস্টলড দ্য অ্যাপ मतलब ये প্রি ইনস্টলড क्या কি হয় অরিজিৎ, মানে আগের থেকে ইনস্টল করা আছে? ও আগের থেকে আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, খুব ভালো আছে। যাদের আগের থেকে আছে, ঠিক আছে, তারা কোনো তাদেরকে কোনো ডাউনলোড ইনস্টল করা, আমার তার মানে এটা নিয়ে কাজ করেছো। দেখো এটা নিয়ে প্রচুর ভালো ভালো কাজ করা যায়। You can do a lot of things using this Blink app. Okay, but I will show you the first thing today. After that, I will show you lots and lots more. Installed? अगर प्लीज इंस्टॉल हो जाएगा तो मुझे ग्रुप में बोल दीजिएगा। ना 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 ना, आई विल टेल, आई विल टेल। लॉगिन विथ ना भाई, फेसबुक अकाउंट दिए, प्लीज कुछ मत करो यार, हर चीज में फेसबुक और व्हाट्सएप को लाना ठीक नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी फेसबुक से और व्हाट्सएप से अभी हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं। ঠিক আছে অমৃতাক্ষ, বুঝলে ভাই, এখন ফেসবুক থেকে দূরে থাকো। Okay, after you install this Blink app, what are you getting? Open the Blink app. What is the somebody need to communicate with me, please. प्लीज आपको बात करना होगा, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। उधर पे लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है, लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो रुको, उधर रजिस्ट्रेशन का कुछ है? रजिस्ट्रेशन का नहीं था, एक क्रिएट अ न्यू अकाउंट था, तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट, एवरीबॉडी क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू अकाउंट। देवज्योति, you keep communicating with me. ओके सर, ओके, उसमें जीमेल और पासवर्ड डाल के क्रिएट हो गया। यस यस, एवरीबॉडी वहां पर क्रिएट अकाउंट है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो, वहां पर एक जीमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी जीमेल का दे दो और उधर एक अच्छा पासवर्ड दे दो। प्लीज जीमेल का पासवर्ड मत दीजिएगा, कुछ अच्छे पासवर्ड दे दो ना कुछ, ठीक है। एक पासवर्ड दे दो, पासवर्ड देकर क्रिएट अकाउंट करो एवरीबॉडी। डन। everybody do this please. Okay, so everybody has done. Okay, so after that Debojyoti ki dekhache, after login, it is showing to login, right?
হ্যাঁ স্যার লগ ইন করার পর নিউ প্রজেক্ট মাই অ্যাপস এন্ড কমিউনিটি দেয়ার আর 3 অপশনস Okay, fine. So everybody log in and click on my project, new project. Sorry, new project. Click on new project. Everybody log in and click on new project and give there a name home automation. প্রজেক্ট নেম হোম অটোমেশন Home automation. Give there a name home automation. Give it a name home automation. Click on new project and give a name home automation. ওকে স্যার Home automation. Wait. Home automation. Everybody gave the name home automation. Okay, what is showing next? Below that, what is showing? চুজ ডিভাইস Okay, চুজ what ডিভাইস it is? Choose device. ইট ইজ Okay, click on that. ইয়েস Choose device. What it is showing? Choose device. there are lots of options sir something is ESP8266 Yes. ESP Yes. Everybody will connect, choose ESP8266. we have to choose that sir Yes. 822 okay Yes. Choose device now it's saying connection ESP8266. type. Okay, this is done. After that, what it is showing? Connection type sir What is connection type? mine is Wi-Fi sir Wi-Fi. Everybody will keep Wi-Fi. Connection type Wi-Fi. Connection type Wi-Fi. After that, there are sir two options theme for dark and light and then create no other না option ওটা নো প্রবলেম, ওটা কোনো ইয়ে নয়, ওটা ওটা চেক করার দরকার নেই। ও থিম ফর ডার্ক লাইট आपका मर्जी यार, your wish, you can choose anything. Okay, next everybody click on create. so it shows authorization token was sent to Gmail Okay, fine. Authorization token was sent to Gmail, means one token will be sent to the Gmail. Please, everybody please go to the Gmail and please confirm that Blink has sent you one token on the Gmail. Please go and check, everybody go and check. Gmail has Blink, everybody, सबको मिला होगा, सबको देखिएगा, ठीक से देखिए, सबको मिला होगा, आया है ना, एक मेल आया होगा ब्लिंक से, उसमें देखिएगा एक लंबा चौड़ा टोकन, नहीं उसमें देखिएगा बड़ा चौड़ा टोकन होगा, मतलब 25 to 30 कैरेक्टर्स का, 25 to 30 कैरेक्टर्स का एक बड़ा चौड़ा टोकन है। मेरा ही नहीं है स्पैम चेक करो। अच्छा वही कर रहा हूँ मैं हाँ स्पैम चेक करो, आएगा जरूर, 100% आएगा। हाँ प्रमोशन चेक आ गया ना, देखो स्पैम में गया है क्या? ऑथराइजेशन टोकन से कुछ अंडरस्कोर करके कुछ है बहुत बड़ा आया होगा, देखना 25-30 कैरेक्टर्स का एक आया होगा, 25-30 कैरेक्टर्स का, उसको छोड़ दो, उसको रखो अपने पास रखो उसको, ठीक है, मैं जब बोलूंगा तब देना, ठीक है, या फिर मैं जब बताऊंगा कि एक्चुअली उसका क्या काम है, तब आप लोग सब समझ जाओगे कि एक्चुअली व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट। अभी अपने पास रखिए। सबको मेल मिल चुका है, सबको मेल मिल चुका है, और हमारा ऑथराइजेशन टोकन भी हमारा मेल पे चला गया है, और परफेक्ट। अब आप ब्लिंक ऐप में जाइए, व्हाट इज शोइंग, ब्लिंक ऐप क्या शो कर रहा है? सर कुछ बोर्ड्स जैसा दिखा रहा है, ब्लैक एकदम, एक ब्लैक स्क्रीन आएगा, एक ब्लैक स्क्रीन आया होगा। जब एक ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, व्हेन अ ब्लैक स्क्रीन इज प्रेजेंट, जब एक ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, टॉप पर, ओके we will start after, okay please take a break, we will start after 5 minutes, 5 to 7 minutes के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले लो आप। ओके सर, ओके
Okay, so we are back again. So that's it. So what is available on the screen? A black screen, blank. Yes, Isn't sir. it? It's Yes, like yes. a breadboard, sir. Okay, yeah, it's like a breadboard. Yes. Okay, so those are pixels. Okay, it's like a breadboard. Yes. Okay, okay, fine. Now the next is what we have to do. Can everybody see a plus option on the top? Yes, sir. Add option. Add option. Click on that plus option. A plus button on the top. एकदम टॉप पर देखो एक प्लस का बटन होगा. हाँ, वो प्लस बटन पे क्लिक करो. Widget क्या box. ये थर्ड वाला स्क्रीन? हाँ, क्या ये थर्ड वाला स्क्रीन आ रहा है? ये थर्ड स्क्रीन ये वाला आ रहा है. देखो ऐसा कुछ आ रहा होगा. बटन स्लाइडर, लार्ज स्लाइडर. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है ना? हाँ, ठीक. ये बटन पे क्लिक कर दो. बटन पे क्लिक करो. बटन. हाँ सर. प्लेस ठीक हो है. गया वो बोर्ड में. वो देखो वो बोर्ड पे प्लेस हो गया होगा. बोर्ड पे प्लेस हो गया होगा. हो गया ना? ठीक है. वो हो देखिएगा गया सर. बेड. हाँ, बोर्ड पे प्लेस हो गया. बस दैट्स इट. दैट्स इट. आपको और कुछ नहीं करना है. तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बटन को लेकर आया और हम लोगों ने उस बटन को प्लेस कर दिया उस बोर्ड पे. ठीक है. नाउ नाउ अभी आप एक काम करो. अभी आप काम करो. अब इधर नहीं, इधर नहीं. वो बटन जो है वो बोर्ड पे प्लेस हो गया होगा. बटन जो है वो बोर्ड पे प्लेस हो गया होगा. आफ्टर द बटन गेट्स प्लेस्ड ऑन द बोर्ड. आफ्टर द बटन गेट्स प्लेस्ड ऑन द बोर्ड, क्लिक ऑन दैट बटन. क्लिक ऑन दैट बटन. वो बटन पे क्लिक करो. उस बटन पे क्लिक करो. देखो कुछ इस तरीके का ओपन होगा. Yes, इस तरीके का there ओपन हुआ is कुछ. some pin, output, mode. इस तरीके का ओपन हो रहा है. ये सर. Yes, sir. ठीक है. सो ये विंडो ओपन हो जाएगा. व्हेन यू विल क्लिक ऑन बटन, ये विंडो आपको मिलेगा. यहाँ पर नाम दे दो. यहाँ पर नाम दे दो. एक बटन का नाम दे दो. वेट जस्ट अ सेकंड. वेट वेट. जस्ट मुझे भी एक बार आपको जस्ट ये करने दीजिए, इंस्टॉल करने दीजिए. जस्ट अ सेकंड. थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है. तो मैं जस्ट चाहूंगा यहाँ पर. हाँ ठीक है. एकदम परफेक्ट परफेक्ट. तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? हमारे यहाँ पर बटन का ऑप्शन आ गया. जैसे हमारे यहाँ पर बटन का ऑप्शन आ जाता है, सबसे पहले आप उसको एक नाम दे दो. गिव इट अ नेम. उसको एक नाम दे दो. क्या नाम दोगे आप? क्या नाम दोगे आप? बटन का नाम दे दो. सपोज लाइट 1 नाम दे दीजिए उसका. लाइट 1. लाइट 1. Yes, sir. आ गया ना? लाइट 1. बटन का नाम दे दो लाइट 1. ठीक है. अच्छा, Yes, ठीक उसके नीचे. should I mute myself? Or? Should you mute? No, no, no. Devajyoti, you have to keep communicating with me until and Okay. unless the app is configured. You have to keep communicating. Okay, चलो. बटन का नाम दे दो. Light one. लाइट 1. ओके, चलो परफेक्ट. हाँ, ठीक. उसका नीचे देखो क्या है. 3 बॉक्स अपीयर कर रहा होगा. 3. एक पे लिखा होगा 0 and 1. ठीक. उसके नीचे क्या है? Devajyoti, after giving it a name,